Okay, good morning to all of you all. Now, in uh, today's session, this 1 minute, yeah, I was just checking on the comments. Okay, yes. So, in today's session, let us first of all quickly see what we are going to do in today's lecture. First of all, we'll recall previous lecture, whatever we did as usual. Then I will address the doubts and queries that you have asked in the previous lecture. Next, today we will see the third type of problem in the topic of Laplace transform, that is problems based on the properties of Laplace transform. Then I will just tell you what we are going to take in the next lecture, and then you will attempt our online quiz number 5. Okay. So to begin with, quick recall of previous lecture. Now in the previous lecture, basically we have seen one type of problem, that is where we find Laplace transform using the basic formula. Okay. Now this is something I would like to highlight a bit. Let me talk a little bit about this. Initially, we have seen that there are certain standard functions whose Laplace transform we need to remember as formula. Which are those standard functions? Constant function 1, e raised to 80, e raised to minus 80, sine 80, cos 80, sine hyperbolic 80, cos hyperbolic 80, and t raised to n. So these functions we call it as the standard functions. We need to remember the Laplace transform of these functions, and they will be considered as standard formula for Laplace transform. Okay. Next, what we saw was certain functions whose Laplace transform we found out using some basic formula and the linearity property. Okay, so basic formula here means trigonometric formula or a plus b the whole square ka formula. Okay, so let us see what those functions are which we have seen till now. So we have sine of at plus b, this kind of function we have seen where we use sine a plus b formula, cos of at plus b, sine hyperbolic at plus b. This we have not seen a problem on sine hyperbolic, but it can be solved in a similar fashion. Cos hyperbolic at plus b, sine raised to nt, cos raised to nt, sine hyperbolic raised to nt, and cos hyperbolic raised to nt. So this is what we have seen in the previous lecture. Now we can find out the Laplace transform of these functions using basic formula. Linearity property is by default used in every problem in Laplace transform. So that is why linearity property we will not mention it separately. Okay, so whatever we are using other than linearity property, that I am mentioning here. So these functions का Laplace transform we find out using the basic formula. ठीक है? Okay, so this is what we have seen in the previous class. Now regarding doubts and queries, there has been a doubt in the solution of the practice problems, and yes, as few of you all have pointed out, there was an error in the solution in the sign. This was given as minus, this was given as minus, this is supposed to be plus. Okay, and here 6 was written, so this is supposed to be 3. So there is a correction. Now this correction I have already made in the previous lecture practice problem slide, so you can see the correction also. Also there was one more error in the second problem solution. This is supposed to be s, it was by mistake typed as 5 over here. Okay, so it is s. So these are the two queries that people have asked. Other than this, I have not received any other query so far. Rest everything, I hope you have no difficulty. Okay, so this was about previous lecture. Now coming to today's lecture. Now today's lecture we are going to see, as I have already told you, problems based on properties of Laplace transform. Now these properties of Laplace transform, I am going to introduce it to you with respect to the operators that are involved in the given function.
there is a given function whose Laplace transform you have to find. This is the question we are dealing with. Find Laplace transform. हम लोग क्या कर रहे हैं, Laplace transform कैसे फाइंड आउट करना है एक गिवन फंक्शन का, वो देख रहे हैं. ओके, तो गिवन फंक्शन कैसे होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है वो होते हैं, और वो स्टैंडर्ड फंक्शंस को कनेक्ट किया जाता है यूजिंग ऑपरेटर्स. विच ऑपरेटर्स? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन. ये हमने पहले लेक्चर्स में देखा था, शुरू में फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में ये हमने बात की थी. ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, सो ऑपरेटर वाइज हम लोग डील करेंगे. सो लेट अस सी, अगर आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का, ओके, एंड दैट फंक्शन इज लाइक दिस, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी. ओके, मतलब एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन जिसका लप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आता है, पता है आपको. जी ऑफ टी इज अ फंक्शन जिसका लप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है. नाउ यू वांट टू फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी. दीज टू फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय एडिशन. तो इसको हम कैसे करते हैं, वी यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी. व्हाट इज दिस लीनियरिटी प्रॉपर्टी? इट सेज Laplace transform of f of t plus g of t is equal to Laplace transform of f of t plus Laplace transform of g of t. Correct? So this is how we find Laplace transform when addition is there. Next, suppose you have a function f of t minus g of t. ये f of t का Laplace transform आपको पता है, g of t का Laplace transform आपको पता है. तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन का लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बोलता है, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी इज इक्वल टू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी. तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो अगेन वी यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है c, ओके, c आई हैव यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक फंक्शन के साथ. तो हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, सो नेक्स्ट थिंग वी आर सीइंग इज मल्टीप्लिकेशन. सो द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन वी आर सीइंग इज, ये एक फंक्शन है f ऑफ t जिसका हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म पता है. ओके, और इस फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट के साथ. तो इसका ये प्रोडक्ट का लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी. इसका भी प्रोविजन लीनियरिटी प्रॉपर्टी में है. तो यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट c इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू c into Laplace transform of f of t. Correct? So linearity property says simply take the constant c outside. तो जब multiplication है where function के साथ constant multiplied है तो भी हम linearity property use कर सकते हैं. Okay? Next case, अगर हमारे पास एक function है f of t and that is multiplied with another function g of t. f of t is a function जिसका हमें Laplace transform पता है. g of t is also another function जिसका हमें Laplace transform पता है. अब हमें Laplace transform find out करना है ये f of t into g of t का. ओके, तो इन ये प्रोडक्ट का हम Laplace transform कैसे find out करेंगे? Now, is this equal to, can we use this particular formula here? Laplace transform of f of t into g of t equal to Laplace transform of f of t into Laplace transform of g of t. ये हम use, can we use it this way? The answer is no. Yes, very good. I've already got your answer as no. Okay, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है और अपना ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना भी मत. Why I have mentioned this particular formula, ये जो ये फॉर्मूला नहीं है, why I have mentioned this is because ये तीन देखने के बाद नेचुरली दिमाग इसके बारे में सोचता है. And even after telling this many times, I still get problems solved by using this. Okay, तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा हम यूज नहीं कर सकते. अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो लप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते.
ओके, तो फिर क्या करना है? तो उसका आंसर है, आपको दो में से एक चीज करना है। या तो आप कोई बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप प्रॉपर्टी ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट फंक्शन एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी यू आर हैविंग. So this is what we will be discussing today. Okay, so I hope this is clear. When we have two functions f of t and g of t multiplied together, तो आपको इस प्रोडक्ट का लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है? या तो कोई बेसिक फॉर्मूला यूज करके, या तो कोई प्रॉपर्टी यूज करके. ओके, वी विल सी अबाउट दिस प्रॉपर्टी. तो मल्टीप्लीकेशन की तो बात कर ली. कमिंग टू डिवीजन नाउ. डिवीजन का आपके सब सिलेबस में एक ही टाइप ऑफ डिवीजन है, एंड दैट इज some function f of t divided by t. This is the only type in your syllabus. f of t divided by g of t नहीं है. ओके, सो अगर f of t divided by t है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है where you can find out the Laplace transform of this expression. Okay, so we look at this operation and we understand how we find the Laplace transform based on these operations. So understanding this concept is very important. ये concept आप understand करोगे तो problem solve करने में difficulty नहीं होगा. I hope this much is clear. Any confusion so far? No मतलब no confusion. Okay, इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? Okay, okay, great. किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क डाउट. ओके, गुड. तो नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, एज आई टोल्ड यू, अगर दो फंक्शन है और उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फर्स्ट थ्री टाइप्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी. आज हम ये फोर्थ टाइप से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड. ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज जो है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू नाउ. ये सिर्फ आप देखना है एक बार, फिर इसको आप ज्यादा बेटर वे में समझेंगे जब हम इसका प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, सो द फर्स्ट केस इज, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू ए टी. ओके, मतलब अपना जो जी ऑफ टी है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेस टू ए टी. तो जब ऐसा केस है तो हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. आई विल टेल यू अबाउट दिस प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्यू मिनट्स लेटर. ओके, राइट नाउ सिर्फ ये समझते हैं कि कौन सा केस है तो उसको कैसे सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एफ ऑफ टी फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई किया है ई रेस टू ए टी से, तो फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसको मल्टीप्लाई किया है ई रेस टू माइनस ए टी, मतलब यहाँ पर जो सेकेंड फंक्शन है ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेस टू माइनस ए टी है. तो इस प्रोडक्ट का अगर आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ओके, सो दिस इज द सेकेंड केस. नेक्स्ट, अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है टी से, अपना एल्जिब्रिक फंक्शन टी, दैट इज टी रेस टू वन, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी. ओके, एंड फाइनली एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ टी. अब ये इफ दिस जी ऑफ टी इज एनी फंक्शन अदर देन दिस, मतलब ई रेस टू ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी, टी, इन तीनों के अलावा ये जी ऑफ टी अगर कोई और फंक्शन है अदर देन दिस, देन वी विल बी यूजिंग बेसिक फॉर्मूला. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको ये चार चीजें याद रखनी है. वेरी सिंपल, लेट्स क्विकली रिकॉल. अगर अपना फंक्शन एफ ऑफ टी है, उसको मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुड बी ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी. तो अगर फंक्शन मल्टीप्लाइड विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है,
तो वी यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फंक्शन मल्टीप्लाइड है एल्जिब्रिक फंक्शन t, दैट इज t रेज टू 1, तो प्रॉपर्टी यूज करना है मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी. इन तीनों के अलावा अगर एफ ऑफ टी किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो हमें यूज करना है बेसिक फॉर्मूला. ओके, सो ये चीजें याद रखना है. आज हमें टुडे वी हैव टू रिमेंबर अ लॉट मेनी थिंग्स, बट देन आई होप इट इज सिंपल. एज वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ये याद रखना भी आपको इजी हो जाएगा. ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड में सारे ऑपरेशंस के हमने साथ में देखे. ये वाले स्लाइड में मल्टीप्लिकेशन के बारे में इन पर्टिकुलर सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं. ओके, सो नाउ लेट अस सी प्रॉब्लम्स वेयर वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, now let me take this particular problem. Finding Laplace transform में you are asked to find Laplace transform of cos 2t into cos 3t. ओके, तो हमें ये Laplace transform find out करना है. तो if you see यहाँ पर दो फंक्शन है. एक है cos 2t, ये अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है cos at के फॉर्म में. दूसरा फंक्शन है cos 3t, ये भी अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है. एंड हाउ आर दे कनेक्टेड? यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो ये लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी हैव सीन दैट जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो अगर मल्टीप्लीकेशन में एक अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ t है तो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ कोई और फंक्शन है तो बेसिक फॉर्मूला. तो यहाँ पर ये ना एक्सपोनेंशियल है, इन दोनों में से कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, ना t है, तो वी कैन नॉट यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हियर, वी कैन नॉट यूज मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी हियर. तो हमें यहाँ कौन सा मेथड यूज करना है? बेसिक फॉर्मूला. ओके, तो विच बेसिक फॉर्मूला आर वी टॉकिंग अबाउट? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, तो naturally the basic formula that we are going to use is the trigonometric formula. Okay, तो यहाँ पे जो relevant formula है, see here both the functions are cos, तो इसमें वैरायटी हो सकता है, एक cos एक sin, पहला sin फिर cos या दोनों sin. तो I have given all the four formulas which can be used. जैसा केस है उसमें उसके depending on that you will choose one of the formulas. तो here यहाँ पर दोनों cos है तो we'll have to use this third formula. Okay, what is this third formula? Here a greater than b, we will prefer a to be greater than b. 2 cos a cos b will be equal to cos of a plus b plus cos of a minus b. Okay, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. तो यू कैन सी दैट यहाँ पर दो चीजें हमें एडजस्ट करनी है. एक तो दैट 2 इज मिसिंग, so we'll have to adjust that too. And second thing, we will arrange these functions in such a way that the first angle is greater than the second angle. वो सिर्फ कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के लिए है. ओके, तो ये 2 हमने एडजस्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो कांस्टेंट है, इसके लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके उसको बाहर निकाल दिया. सो वी गेट हाफ 2. नाउ इन दोनों में से this cos 3t has a bigger angle, so I have written cos 3t first and next we have written cos 2t. Okay, so now this is in the form 2 cos a cos b, where a is 3t, b is 2t. Now we can use this formula. So let us see what we get. We get this is equal to half Laplace transform of cos of a plus b, that is 3t plus 2t, plus cos of a minus b, that is 3t minus 2t. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट हाफ cos of 3t plus 2t is 5t plus cos 3t minus 2t is t. Okay, so here I have done it little bit डिटेल में इलेबोरेटली किया है, बिकॉज फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग. एक दो बार सिर्फ इलेबोरेटली करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. करेक्ट, सो directly we can come to this particular step after a while. Okay, so here we have next ये Laplace transform of cos phi t plus cos t है, तो now here addition is involved, तो इसको हम
लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. एडिशन के लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी है. सो दिस गिव्स अस हाफ Laplace transform of cos 5t plus Laplace transform of cos t. Okay. Now this is standard function. इसका Laplace transform हमें पता है, तो we substitute that. So this gives us half. Now Laplace transform of cos 5t is s upon s square plus 5 square plus Laplace transform of cos t is s upon s square plus 1 square. तो हमने Laplace transform भी substitute कर दिया. अब इसको थोड़ा simplify करते हैं. Okay. So this gives us, यहाँ पर न्यूमरेटर में s कॉमन है, so we can take that s outside. So we get s upon 2, 1 upon s square plus 25 plus 1 upon s square plus 1. Okay. So now here we can do a little bit more simplification. इसको cross multiply कर सकते हैं. So we get s upon 2, 1 into s square plus 1, that is s square plus 1 plus 1 into s square plus 25, that is plus s square plus 25 upon s square plus 25 into s square plus 1. So here you can see in the numerator, s square plus s square gives us 2s square, 1 plus 25 gives us plus 26. So we get the final answer as s into 2s square plus 26 upon s square plus 25 into s square plus 1. Okay. Now do we have to multiply these two bracket in the denominator? No, not required. Okay. ये ऐसे ही छोड़ सकते हैं. न्यूमरेटर में ये 2 एक कॉमन निकाल सकते हैं. आई हैव नॉट डन दैट बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी स्पेस. इवन इफ यू do not take it common, then also it is fine. Okay. So here we have seen one problem where multiplication was involved and we have used the basic formula, in this case trigonometric formula, to so find the Laplace transform. I hope this is clear. 1 upon 2. Oh yeah, the 2 is missing. Yes, yes. S upon 2, you are right. Wait. This 2 is here. Yeah, thank you for that. Any other doubt? Okay. Shall we move on to the next problem? Okay. Now see, next problem जो है ये previous problem जैसा ही है. In the previous problem, we had two functions multiplied together, two trigonometric functions multiplied together. In this problem, we have got three trigonometric functions multiplied together. Okay, so procedure is going to be the same, similar. So let us see this. ठीक है. तो here I have taken all cos. इसमें भी variety हो सकता है. All three sine functions could be there. 1 sine, 2 cos, 2 sine, 1 cos. Okay, so procedure is going to be the same. All right. So we are going to find Laplace transform of cos t into cos 2t into cos 3t. Now here we can deal with only two functions multiplied together at a time, correct? So we will only take two functions first. You can consider any two first here. Now here I have considered cos t and cos 2t first. This cos 3t will remain as it is. इसको पहले simplify करेंगे, okay, and then cos 3t को consider करेंगे. यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, बट ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में से कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, कोई भी फंक्शन t नहीं है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज यूज करना है. सो आई हैव रिटन डाउन द बेसिक फॉर्मूलाज दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस वी आर कंसीडरिंग cos t एंड cos 2t, इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई बेसिक फॉर्मूला इन दोनों के लिए यूज करेंगे. सो फॉर दिस वी नीड 1 2 इज रिक्वायर्ड एंड we have to rearrange this terms. तो ये 2 multiply किया यहाँ पर and this 2 is divided here outside. Rearranged cos 2t and cos t. Okay. And this cos 3t remains here.
So first of all we use the formula for 2 cos 2t cos t. तो ये क्या रहेगा? What will this become? Half Laplace transform of cos of 2t plus t plus cos of 2t minus t, and this cos 3t remains multiplied here. This can be simplified as half Laplace transform of cos 3t plus cos 2t minus t is cos t into this cos 3t multiplied here. So we have used the formula for this part here. Now what we will do, we'll open this bracket. So we get half Laplace transform of cos 3t into cos 3t gives us cos square 3t plus cos t into cos 3t. So this we get cos t into cos 3t here. Okay. Now this cos square 3t. So here this we have to simplify using a basic formula. Cos t into cos 3t, यहाँ पर भी multiplication है, तो यहाँ पर भी हमें basic formula use करना है. Okay. So for cos square 3t, we can use this basic formula. 2 cos square a is 1 plus cos 2a. For cos t and cos 3t, we can use this basic formula 2 cos a cos b equal to cos of a plus b plus cos of a minus b. So we are going to use these two formulas. Both of these formulas के लिए we need this coefficient 2. So that is the first thing we are going to do now. We are going to adjust that 2. So you can see here I have multiplied numerator and denominator by 2 again. Already one 2 was here. So now the denominator outside becomes 4 and we get Laplace transform of 2 cos square 3t plus 2 cos 3t cos t. Okay. So now we use our formula to cos square 2 cos square 3t. We get 1 by 4 Laplace transform of 1 plus cos 6t plus we use our basic formula to 2 cos 3t cos t. So I'm going to use the formula now directly. So this will become cos of 3t plus t, that is cos 4t plus cos of 3t minus t, that is cos 2t. Okay. So we have used basic formula here, trigonometric formula. We have used basic trigonometric formula here. So this is what we get. Now if we see 1 cos 6t, cos 4t, cos 2t, these are all in the uh, standard form. Yes, Bharat, which step, this entire step you want me to explain? Okay. Yeah, I explain this entire step again. ये वाले स्टेप में से ये स्टेप कैसे आया ये तो पता चला ना, ये हमने सिर्फ एक 2 एडजस्ट किया है बिकॉज हमें ये फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है. ये थर्ड फॉर्मूला मैंने ऐसे एडिशनल दिया है बिकॉज इट इज सिमिलर टू दिस. ओके. तो यहाँ पर वी हैव 1 by 4 Laplace of 2 cos square 3t प्लस 2 cos 3t cos t. यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 डिवाइड जो किया है ये बाहर गया है और यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई किया है और इसको रीअरेंज किया है सो दैट द फर्स्ट एंगल इज बिगर देन द सेकेंड एंगल. सो दैट इज हाउ वी गॉट 2 cos 3t into cos t. ओके. अब ये जो 2 cos square 3t है इसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला 2 cos square a. 2 cos square a का वैल्यू फॉर्मूला है 1 plus cos 2a. तो 2 cos square 3t will become 1 plus cos 6t. a है तो 2a डबल हो जाएगा, तो यहाँ 3t है तो उसका डबल 6t हो जाएगा. ओके. नाउ द सेकेंड पार्ट 2 cos 3t cos t. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 cos a cos b. इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b. तो 2 cos 3t cos t will be cos of a plus b, that is 3t plus t. So that gives us cos of 4t plus cos of a minus b, that is 3t minus t. 3t minus t is 2t. तो हमें मिलता है cos 2t. तो पिछले यहाँ पर मैंने देखो ये पूरा प्लस और माइनस लिख के बताया है एंड आई टोल्ड यू ना इवेंचुअली हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे. इज इट ओके दिस डायरेक्ट, या फिर इफ यू वांट आगे से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी पूरा डिटेल में भी बता सकती हूँ. राइट नाउ इज दिस स्टेप ओके?
Yes, Bharat? Okay. Anyone has any difficulty till this step? यहाँ तक ठीक है? Okay. Now we continue. ओके, सो एज आई वाज सेइंग, यहाँ पे फंक्शन 1 है, cos 6t है, cos 4t है, cos 2t है, ये सब अपने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनके लैप्लस ट्रांसफॉर्म हमें पता है. एंड हाउ आर दीज फंक्शंस कनेक्टेड? बाय यूजिंग एडिशन. एडिशन मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो चलो इनको सेपरेट करते हैं. तो वी गेट 1/4 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t. तो सेपरेट कर लिया. नाउ वी सब्सटीट्यूट दिस इंडिविजुअल फॉर्मूलाज. ओके, तो सबसे पहले ये 1/4 तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर. लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या है? 1/s प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t, इट इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ये भी अब हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे. 6 स्क्वायर विल बी 36. ओके, plus Laplace transform of cos 4t will be s upon s square plus 4 square, that is s upon s square plus 16, plus Laplace transform of cos 2t s upon s square plus 2 square, that is s upon, oh, should be 1 minute, it should be s upon s square plus 4. This has to be okay. I'll just run through this what we have done. Okay, so Laplace transform of cos 2t is s upon s square plus 2 square, that is s upon s square plus 4. Yes, yes, very good. So I'm happy that all of you have started remembering the formulas. The best way to remember the formulas is not to mug it up. Mug up मत करो, बहुत confusion हो जाएगा. सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स. जितना आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करोगे उतना ये फॉर्मूलाज यूज होंगे. जितना ये फॉर्मूलाज यूज होंगे उतना आपको बेटर याद रहेगा. ओके, आर वी ओके सो फार? ओके, सो नाउ, तो अभी हमने जो दो प्रॉब्लम देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व थे. यहाँ पर हमने क्या देखा? द फंक्शंस वर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन. तो हमने बेसिक फॉर्मूला यूज करके इनके लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किए. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. यहाँ पर हमें फाइंड करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 4t इंटू साइन क्यूब t. यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है e रेज टू 4t एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है साइन क्यूब t. ओके, सो ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाइड है. तो हमने अभी वो मल्टीप्लीकेशन वाले स्लाइड में क्या देखा? अगर मल्टीप्लाइड है, यस यस, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड है और उनमें से एक अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल है या दूसरा फंक्शन, दोनों में से कोई भी फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो वी विल सी what this first shifting property is in this problem and how to use it. तो ये जो properties है इनका एक formal statement है. वो statement मैं अभी नहीं दूंगी आपको. statement first I will explain to you how we are using it. जैसे आप इसको problem में use करता हुआ देखेंगे तो आपको ये बहुत easily समझ में आ जाएगा. and then एक बार हम जब सारे properties use कर देंगे देन लास्ट में इसका जो प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मल स्टेटमेंट है वो हम लास्ट में देखेंगे आफ्टर यूजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज. ओके, ऑल राइट. सो नाउ ये हमने अगेन कमिंग बैक टू दिस फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख के हमें पता है कि हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. ओके, सो आई हैव रिटन p फॉर प्रॉपर्टी.
तो ये जो दूसरा फंक्शन है साइन क्यूब टी, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। नाउ सी हाउ वी आर अप्रोचिंग द फंक्शन। ओके, पहले हर एक टर्म को देखना है, ऑपरेटर क्या है वो भी देखना है। ओके, यहाँ पर ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कनेक्टेड विथ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ प्रॉपर्टी। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता, तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं यूज करते। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो प्रॉपर्टी यूज करना है। और ये साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और टी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए है। तो मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, ईदर स्टैंडर्ड फॉर्मूला या वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला। ओके, तो ये इतना समझ में आ जाता है। अब प्रॉपर्टी भी यूज करना है, फॉर्मूला भी यूज करना है, तो पहला कौन सा यूज करें। ओके, सो फॉर दैट आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। ये जो है, आर यू एबल टू सी दिस इमेज? बहुत छोटा है बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेक अ डिफरेंट स्लाइड फॉर दिस। दिस इज a clip from the movie The Pirates of Caribbean. I hope all of you must have at least seen the trailer or something of the movie, correct? तो ये जो ऊपर, हाँ तो ये तो देखा ही होगा, करेक्ट, ये तो छूटेगा नहीं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट जो है, दिस इज व्हाट वाज एक्चुअली कैप्चर्ड। ये जो पिक्चर है शूटिंग के वक्त, जो रियल पिक्चर है वो कैप्चर किया है। ओके, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट दिया है। तो एक्चुअल कैप्चरिंग के वक्त ये होता है फर्स्ट पार्ट, डेड मैन्स चेस्ट, या हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टी। तो ये फर्स्ट पिक्चर जो है दिस इज शूटिंग के वक्त जो रियल पिक्चर है, एंड सेकेंड जो है स्पेशल इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे होता है, पहले ये बेसिक पिक्चर क्लिक होता है, बाद में स्पेशल इफेक्ट आता है, करेक्ट? आप पहले स्पेशल इफेक्ट डाल के बाद में पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते, करेक्ट? ओके, तो सिमिलरली लप्लास ट्रांसफॉर्म में ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक पिक्चर है, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये स्पेशल इफेक्ट है। तो पहले आपको फॉर्मूला वाला पार्ट को टेक केयर करना है, बाद में हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, मतलब बाद में हम स्पेशल इफेक्ट्स यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। आपको पहले लप्लास ट्रांसफॉर्म उस फंक्शन का फाइंड आउट करना है जो फॉर्मूला से, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला या तो बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व होता है। ओके, सो वी स्टार्ट विथ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। अब ये जो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी है इसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो साइन क्यूब एक्स का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ पर दे रही हूँ, वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। या फिर अगर आपको लगता है कि कभी फॉर्मूला याद नहीं है तो देन साइन रेस टू एन टी का जो है वो हमने प्रोसीजर देखा था, करेक्ट? तो वो प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं, ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी अपॉन टू आई, तो वो वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। गाइस जस्ट गिव मी 1 minute, my battery is low on the laptop, let me just connect this, just give me 1 minute. Yeah, sorry for that interruption. या एज आई वाज सेइंग, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। वैसे भी फॉर्मूला हम साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, इतना तक फॉर्मूला तो हम एक्सपेक्ट करते ही है, याद रखना। जब रेस टू 4 से के आगे, रेस टू 4, रेस टू 5, रेस टू 6, दिस एंड ऑल वी कैन यूज बाय दैट मेथड, कि बहुत सारा फॉर्मूला तो याद नहीं होगा। ओके, नाउ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ईजी है, दिस इज साइन क्यूब एक्स, करेक्ट? तो सी हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिमेम्बर्ड। ये 3 जो है नीचे उतर के आता है, दिस 3 इज इन द पावर हियर, करेक्ट? सो दिस कम्स डाउन, सो यू गेट 3 साइन एक्स। साइन फंक्शन है इसके लिए माइनस, नेक्स्ट टर्म में ये 3 अंदर चला जाता है तो साइन 3x। ओके, एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय 4।
सो दिस इज वन जस्ट अ वे ऑफ रिमेंबरिंग द फॉर्मूला. साइन रेस टू 3x है, तो ये ऊपर जो पावर है उसको नीचे लाते हैं तो मिलता है 3 sin x माइनस नेक्स्ट टर्म के लिए ये 3 को अंदर ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स sin 3x एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय 4. cos क्यूब x का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? सेम वे है, ओनली डिफरेंस इज cos फंक्शन अपना पॉजिटिव फंक्शन है तो यहाँ पे मिडिल साइन जो है प्लस आएगा. That is the only difference. So this 3 comes down, we get 3 cos x plus 3 goes inside the angle cos 3x. 3 actually doesn't go inside the angle. This, as I said, is just a way of remembering the formula. Okay. So the whole thing upon 4. So right now here I am going to show you this formula method. तो ये sin cube t के जगह पे हमने ये formula substitute किया, तो Laplace transform of sin cube t, तो this 3 comes down, तो we get Laplace transform of 3 sin t minus sin 3t, the whole divided by 4. Okay. तो यहाँ पर क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली. तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो ये जो 4 है डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते. इट कम्स आउट एज 1/4 into Laplace transform into here, sorry, this first इसमें this constant 3 comes out, so we get 3 into Laplace transform of sin t minus Laplace transform of sin 3t. okay, तो हमने linearity property use किया. Now we know the Laplace transform of this function. Let's substitute. So we get 1/4 first का 3 into Laplace transform of sin t, this is sin 1t, तो इसका Laplace transform आएगा 1/s square plus 1 square, that is 1. okay, minus Laplace transform of sin 3t will be 3/s square plus 3 square, that is 9. So we get this answer as 1/4 into 3 into 1/s square plus 1 minus 3/s square plus 9. ओके. अब ये जो 3 है न्यूमरेटर का, इसको कॉमन निकाल सकते हैं. सो वी गेट 3/4 आउटसाइड into 1/s square plus 1 minus 1/s square plus 9. तो ये हमने Laplace transform of sin cube t find out किया. And after finding the Laplace transform of sin cube t, see I have written this final statement where I have written the left hand side also, right hand side also. okay, तो हमने Laplace transform of formula वाला part function जो है उसका हमने Laplace transform find out कर दिया. okay, now we have to add this, include this property वाला part, मतलब ये special effect डालना है अभी. तो ये कैसे work करता है, let us see. Now I am going to introduce this property to you. अगर आपके पास एक फंक्शन है Laplace f of t, और आपको पता है कि उसका Laplace transform is some function phi of s. okay, now what you want to do is you want to multiply this function f of t by e raised to at. Then what happens is ये जो phi of s है right hand side में, s gets replaced by s minus a, मतलब s के जगह पे s minus a डालना है. ओके, दिस इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी हमें इंस्ट्रक्शंस देता है ये करना है करके. ओके, तो ये क्या बताता है? अगर लेफ्ट हैंड साइड इनसाइड Laplace ट्रांसफॉर्म यू हैव दिस फंक्शन f of t, उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है e raised to at, e raised to पॉजिटिव at, तो राइट हैंड साइड में s के जगह पे आएगा s माइनस a, मतलब Laplace transform of e raised to at into f of t will become phi of s minus a. okay, this is one statement of first shifting property. इसका एक और स्टेटमेंट है एंड दैट इज, सपोज अगर आपके पास फंक्शन है f of t जिसका Laplace transform is phi of s, but now you want to multiply this f of t by e raised to minus at. यहाँ पर क्या था? e raised to at के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर e raised to minus at के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या होगा? here s got replaced by s minus a, here s will get replaced by s plus a. मतलब if you want to multiply f of t by e raised to minus at inside Laplace transform, the right hand side में s gets replaced by s plus a.
So what do we get? Laplace transform of e raised to minus at into f of t will be phi of s plus a. So these are two statements and this is called as first shifting property या फिर इसको कभी कभी फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर आई हैव एक्सप्लेन्ड. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम यूज करेंगे. हमारे पास है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी. इस साइन क्यूब टी को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ई रेस टू 4t के साथ. ओके, तो अगर ई रेस टू 4t के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में क्या होगा? s के जगह पे s माइनस 4 रिप्लेस होगा. e रेस टू पॉजिटिव 4t है तो s के जगह पे रिप्लेस करना है s माइनस 4. ओके, सो लेट अस डू दैट. तो यहाँ पर लप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी के साथ e रेस टू 4t मल्टीप्लाई किया तो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू 4t इंटू साइन क्यूब टी. राइट हैंड साइड में इन द सेम स्टेप क्या होगा? ये 3/4 1 अपॉन यहाँ पर s के जगह पे राइट हैंड साइड में जहां जहां s दिखता है उस s को हटा के s के जगह पर s माइनस 4 डालना है. ओके, इट इज रिप्लेसमेंट. तो दिस विल बी 1 अपॉन s माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाला s भी रिप्लेस होगा. सो यू गेट 1 अपॉन s माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 9. और ये जो दोनों चीजें हैं सेम स्टेप में करना है. लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो इमीडिएटली उसी स्टेप में राइट हैंड साइड में ये रिप्लेसमेंट होना चाहिए. ये बाद में करेंगे, ये पहले करेंगे, ऐसे नहीं. या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी अगेन. यस, आई विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी अगेन. ओके, सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये बताता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई करना है उसमें से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग दैट लप्लास ट्रांसफॉर्म. उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना इसको भूल जाओ. फॉरगेट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जो बचता है बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिलीट करने के बाद जो बचता है सबसे पहले उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो. तो हमें लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू at इंटू एफ ऑफ टी सपोज फाइंड आउट करना है. तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेस टू at को डिलीट कर दो. तो डिलीट किया तो क्या मिलता है? लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि पहले ये लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को फाइंड आउट करो. और सपोज इसका आंसर आता है फाई ऑफ एस. ओके, तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू फाई ऑफ एस, ये हमें फर्स्ट स्टेप करना है. तो हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले इग्नोर किया था अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ एफ ऑफ टी के साथ अगर आप ई रेस टू ए टी को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा? एस के जगह पे एस माइनस ए आपको रिप्लेस करना है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी. राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है? ये रिप्लेस करना है. तो आपको मिलेगा फाई ऑफ एस माइनस ए. ओके, तो ये अगर e रेस टू at से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट होगा. सेम चीज अगर e रेस टू माइनस at के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो s के साथ s प्लस a रिप्लेस होगा. तो ये हमने यहाँ पर कैसे यूज किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन था अपना लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू 4t इंटू साइन क्यूब टी. तो e रेस टू 4t दिखता है तो सबने आइडेंटिफाई किया था लप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है करके, करेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिलीट कर दो. तो सिर्फ साइन क्यूब टी बचा. तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी. ओके, पहले साइन क्यूब टी का लप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमने फाइंड आउट किया. तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी इज 3/4 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9. ओके, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फिर से लाना है मल्टीप्लाई करके. Now for this we use the property. तो ये प्रॉपर्टी बोलता है यहाँ पर अगर आपने e रेस टू 4t मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में क्या करना है? s को रिप्लेस करना है s माइनस 4 से. तो जहां जहां s दिखा हमने s माइनस 4 से रिप्लेस किया. अगर हम मल्टीप्लाई करते e रेस टू 2t से सपोज तो रिप्लेसमेंट क्या होता? s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 2.
अगर हम मल्टीप्लाई करते e रेस टू 7t से, तो रिप्लेसमेंट होता s विल बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस 7. वेरी गुड. ओके, तो ये अभी समझ में आया प्रॉपर्टी क्या है. ओके गुड. अब आंसर तो यहाँ खत्म नहीं होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. ओके, हम इसमें और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा. शुरू में ये थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता ही है, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर यू ऑल. ओके, बट आई एम हैप्पी दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो फार. ऑल राइट, तो यहाँ पर अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन में लैप्लस ट्रांसफॉर्म में जहां तक स्क्वायर का ब्रैकेट है वो हम ओपन करते हैं. अगर कहीं पे क्यूब या उसके ऊपर का पावर आता है तो हम ओपन नहीं करते, उसको वैसे ही छोड़ते. ओके, सो इजी है. ओके, थैंक यू शुभम. ठीक है, इसको ओपन करते हैं. ओके, तो ये ओपन करेंगे तो इसका आएगा 3/4 1 अपॉन a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आएगा s स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू s इंटू 4 दैट इज माइनस 8s प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 16 प्लस ये वाला 1 माइनस ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर का, तो मिलेगा माइनस 1 अपॉन s minus 4 the whole square will be s square minus 2 into s into 4 that is 8s plus 4 square that is 16 plus 9. ओके, अब ये वाला एडिशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3/4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 प्लस 1 इज 17 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 16 प्लस 9 इज 25. ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड दैट इज विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर. तो दिस विल गिव अस 3/4 1 into this gives us s square minus 8s plus 25 minus 1 into this gives us minus s square plus 8s minus 17. ओके, अब आप अपॉन s square minus 8s plus 17 इंटू एस स्क्वायर माइनस 8s प्लस 25. अब न्यूमरेटर में थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है. एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8s प्लस 8s कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 17 ये हमें क्या देता है 6. सो वी गेट 3/4 इंटू 6 अपॉन ये ब्रैकेट को ओपन करने की जरूरत है नहीं, वी लीव इट एज इट इज एंड दिस इज द फाइनल आंसर. Did we understand this? Okay. I know it is already 10:38, but I would like to do just one more problem of this ताकि ये वाला प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में थोड़ा अच्छे से बैठे. ओके, एक और प्रॉब्लम करते हैं. इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 minutes. ठीक है. ओके, look at this question. Find Laplace transform of e raised to minus 2t into 1 upon t the whole square. तो हमें Laplace transform what is 8 क्या है, एक मिनट. कहाँ पर, oh so sorry, yes you're right. yes very good. 1 minute ये लोड होने के लिए 1 सेकेंड लगेगा. कहाँ गया, yes this one right. Okay, now this is fine. Yeah, thank you for being with me. ध्यान रखो बच्चों. ओके, एज आई सेड अब हम ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 2t इंटू 1 प्लस टी द होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन है. करेक्ट. तो जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं तो पता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है. जो दूसरा पार्ट है वो या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला या बेसिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है. करेक्ट. ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब यूज करना है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको डिलीट करना है. दिमाग में इसको डिलीट करो, जो बचता है
पहले उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो। तो वी बिगिन विथ लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर का। सो दिस वुड बी लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस है, सेपरेटेड या कनेक्टेड बाय एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 2 इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, तो सब्सटीट्यूट करते हैं इसका आंसर। लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s प्लस 2 इंटू लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, यहाँ पर पावर 1 है तो इसका फॉर्मूला है गैमा ऑफ 2 अपॉन s रेज टू 2 प्लस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 2 है तो गैमा ऑफ 3 अपॉन s रेज टू 3। तो अभी हमने फॉर्मूला डाल दिया, सिर्फ ये गैमा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ये दोनों भी कौन से गैमा वैल्यूज है? जिनके डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका दिस इज 1 बाय s एज इट इज, this will be plus 2 into gamma of 2 will be 2 minus 1, that is 1 factorial. So this becomes 1 factorial upon s square plus यहाँ पर gamma of 3 will be 3 minus 1, that is 2 factorial upon s cube. Next इसमें 1 factorial और 2 factorial का value substitute करते हैं, we get 1 by s, 1 factorial is 1, so this becomes 2 into 1 upon s square plus 2 factorial is 2, तो that is 2 upon s cube. ओके, तो ये अब हमारा लप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया। तो अब हम ये स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रॉपरली लिखते हैं। सो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस टी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by s plus this can be written as 2 upon s square plus 2 upon s cube. ओके, तो हमने यहाँ पर शुरू में ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटा के जो मिला था उसका हमने लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर दिया है। अब प्रॉपर्टी यूज करके ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लाना है। तो इसके साथ अगर आपको e raised to minus 2t मल्टीप्लाई करना है, हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय e raised to minus 2t, तो राइट हैंड साइड में s रिप्लेस होगा। s किसके साथ रिप्लेस होगा? s प्लस 2 या माइनस नहीं प्लस 2। अगर e रेज टू माइनस 2t है तो s प्लस 2 आता है। ओके, अगर e रेज टू यहाँ पर प्लस 2t होता तो s माइनस आता। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ लेट अस डू दिस। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 2t इंटू 1 प्लस टी द होल स्क्वायर इक्वल टू, जहां जहां s दिखता है s के जगह पे क्या डालना है? s प्लस 2, तो वी गेट 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 द होल क्यूब। इसी स्टेप में करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में रिप्लेस किया, इट शुड हैपन इन द सेम स्टेप। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्यूब वाला ब्रैकेट है, तो हम क्यूब वाला ब्रैकेट को तो ओपन नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर किसी ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे। दैट बिकम्स आवर फाइनल आंसर। इज दिस अंडरस्टूड? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? किसी को डाउट है टाइप करके पूछ सकते हैं, या टाइप नहीं करने हो रहा है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सो फार ओके, ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है, आप दैट इज ऑल, इतना ही टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आज के लिए मैंने किया है। ओके, दिस आई विल बी लोडिंग दिस, इसका पीडीएफ फॉर्म में आपके गूगल क्लासरूम में अनदर 5 मिनट्स में आ जाएगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स विच यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर टुडे। ओके, इसको सॉल्व करना। और आज का जो मटेरियल है गूगल क्लासरूम में मैं जो अपलोड कर रही हूँ उसको आप फिर से रिव्यू करना। उसके बाद आपको कुछ भी उसमें डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज आस्क, आई विल बी अपलोडिंग द डाउट एंड क्वेरीज वाला फॉर्म ऑल्सो। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे. आज हमने एक प्रॉपर्टी देखा ना, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो वी विल सी मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज. एज आई टोल्ड यू, हम ऑपरेशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो विल कंटिन्यू विथ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आज के लिए आपको क्विज 5 अटेम्प्ट करना है. जस्ट गिव मी 5 minutes टू अपलोड क्विज 5 और रिव्यू योर डाउट्स, रिव्यू द एंटायर मटेरियल, और कोई भी डाउट है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं. ओके, so far good. Okay, thank you dears, have a nice day. आप मुझे इनको कंटेंट अपलोड करना है. एक बच्ची बेचारी पिछले 45 मिनट से. हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकते, कनेक्ट नहीं कर पा रही है तो मैं मेरे एंड से कुछ नहीं कर सकते है ना. वो बोलती मैम मैं 45 मिनट से मैं कर रही हूँ. तो मैंने बोला यस. यस ही बोला. अभी मैं मेरे एंड से नहीं कर सकते ना, मेरा कनेक्शन पुअर है तो मैं कुछ कर सकती हूँ. लकी का नंबर नहीं था बोलते उसके पास.
कहाँ कहाँ चेंज किया था? 2 स्लाइड में, ये एक स्लाइड था। बच्चे डाउट पूछ रहे हैं अभी ग्रुप में नेक्स्ट लेक्चर वाले को, मैडम हमारा इधर नीश का प्रॉब्लम है, तो हाउ शैल वी अटेंड द थर्ड लेक्चर? वही डेटा पैक कर लो का